پاکستان امپلائمنٹ پروموٹرز ماہر عدنان پراچا کا کہنا ہے ترسیلات زر میں مسلسل کمی مالی مشکلات مزید بڑھا دے گی۔ جنوری 2022 کے مقابلے جنوری 2023 میں سعودی عرب سے ترسیلات زر میں 26% اور UAE سے 30% کمی ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان۔ دیکھا جائے زیر مبادلہ کے ذخائر 31 ماہ بعد $2 ارب سے نیچے آ گئے ہیں۔ بہت بڑا کنسرن ہے کن ممالک سے کتنا کمی ہوئی ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ جو امپلائمنٹ پروموٹر کے جو ماہر ہیں عدنان پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا اثرات ہو رہے ہیں، کیوں گر رہی ہیں ترسیلات؟ جی دیکھیں اشرف صاحب، اس کے اندر سب سے پہلے مین وجہ یہ جو ہے ہماری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو مین مارکیٹس ہیں وہ ہماری گلف سٹیٹس ہیں، جس کے اندر ہماری سعودی عربیہ ہماری مین مارکیٹ ہے اور اس کے بعد UAE ہے۔ جنوری 2022 سے اگر کمپیریزن کیا جائے جنوری 2023 کو، تو سعودی عربیہ سے 26% ریمیٹنسز کے اندر کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور اسی طریقے سے UAE سے 30% ہمیں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ کمی اگر اسی طرح گریجولی اگر یہی انکریز رہی اور یہ کمی ہوتی رہی تو آنے والے وقت کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کمی کم ہونے کی وجہ سے ہمارا حوالہ ہنڈی، ہمارا جو ایک 25 جنوری کو جو ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ فری فلوٹ کر دیں، اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں حوالہ ہنڈی پینیٹریٹ کر رہی ہے، اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور لوگ جو ہیں ہمارے جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ حوالہ ہنڈی کو ترجیح دیں گے۔ تو اس ٹائم پہ میں حکومت وقت سے، اپنے اسٹیٹ بینک سے، ہماری منسٹری سے، خارجہ منسٹری سے، سب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کریں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ فری فلوٹ کے بعد فیبرری کی فگر کچھ بہتر ہیں، لیکن ہم اس کو بہت اچھا فگر کر سکتے ہیں اگر اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا جائے، ہمارے اوورسیز امپلائمنٹس کو آن بورڈ لیا جائے، اور ہمارے جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی جو مشکلات ہیں اور ان کے پیسہ بھیجنے میں جو تحفظات ہیں اس کو دور کیا جائے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، شدید کنسرن دیکھے جا رہے ہیں کہ جو ترسیلات زر ہے گلف ممالک سے سب سے زیادہ ترسیلات زر آتی تھی پاکستان میں، جس میں پہلے نمبر پہ سعودی عرب تھا، دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے UAE تھا، وہاں سے نمایاں کمی ہوئی ہے۔ امپیکٹ دیکھیں تو $26 کروڑ 2022 کے مقابلے جنوری 2023 میں صرف یہ کمی ہوئی ہے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ یہاں مطالبہ کیا کہ حکومت فوری اس کا نوٹس لے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لڑکی سمیت لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے لاسی گوٹ سے لاپتہ لڑکی کو فوری بازیاب کرانے کا حکم دے دیا۔ کیس کے حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے ممتاز جمالی۔ دیکھیں جی، آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جو ہے لاپتہ لڑکی سے متعلق دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر جو ہے آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے جو ہے لاسی گوٹ کے علاقے سے لاپتہ لڑکی کو فوری بازیاب کرانے کا جو ہے حکم دے دیا ہے، جبکہ جسٹس نعمت اللہ پرپوٹو نے یہ دوران سماعت عدالت میں ریمارکس دیے کہ بزرگ ماں پریشان ہے، بچی جو ہے کمسن ہے، لہٰذا ان کو جلدی سے جلد بازیاب کرایا جائے، جس پر تفتیشی افسر نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ ہر پہلو سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ملزمان کے قریب پہنچ چکے ہیں، جلد جو ہے مغویہ کو بازیاب کرایا جائے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ روز جو ہیں جو مبینہ مغویہ ہیں ان سے رابطے بھی ہیں، لہذا عدالت نے جو ہے مبینہ مغویہ کو، بچی کو بازیاب کرانے کا بھی جو حکم دے دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دیگر لاپتہ افراد سے ان سے متعلق بھی جو ہے عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ ان کو بھی بازیاب کرائے، اور دیگر لاپتہ شہری میں جو ہے عبدالحسن حمزہ اور دیگر شامل ہیں، لہذا عدالت نے 14 مارچ تک جو ہے متعلقہ حکام سے اس متعلق پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اپڈیٹ کریں، گورنر ہاؤس میں MQM کے وفد کی رات گئے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ MQM نے PDM کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز سے گورنر سندھ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں، گورنر ہاؤس میں MQM کے وفد کی رات گئے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ MQM نے PDM کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز سے گورنر سندھ کو آگاہ کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، بتائیے گا ملاقات کے حوالے سے۔ جی بالکل، MQM وفد کی گزشتہ رات جو ہے وہ گورنر سندھ سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں MQM نے گورنر سندھ کو PDM کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے سے متعلق جو ہے تجویز سے آگاہ کیا ہے۔ ملاقات میں جو ہے حلقہ بندیوں سے متعلق اب تک سندھ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے متعلق بھی مختلف امور جو ہے وہ زیر بحث آئے ہیں، جبکہ اس ملاقات میں MQM نے سندھ کابینہ میں شمولیت سے متعلق بھی گورنر سندھ سے مشاورت کی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے MQM کو
PDM का साथ देने की तजवीज़ दे दी गई है। MQM ज़िमनी इंतखाबात में दस्तबरदारी का ऐलान जो है वो अपने आइंदा राब्ता कमेटी के इजलास में तमाम तर राब्ता कमेटी के अरकान से मुशावरत के बाद करेगी। इस अहम तरीन मुलाकात में जो है वो कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, अनीस खानी, ख्वाजा इजहारुल हसन व दीगर भी मौजूद थे। जी, पाक बहरिया के 2 कॉमोडोर्स की रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की कर दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वाले दोनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये पाक बहरिया के 2 कमोडोर्स की रेयर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की हुई है। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि तरक्की पाने वालों में रेयर एडमिरल खैबर जमान और रेयर एडमिरल शफकत हुसैन अख्तर शामिल हैं। दोनों अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुताबिक अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास, हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि महंगाई की नई लहर आ गई है। आटा बनाने वाली कंपनियों ने आटे की कीमतों में 50 रुपये से 100 रुपये का इजाफा कर दिया है। दीगर अशिया ज़रूरिया भी महंगी हो गई हैं। कंपनियों ने आटे की कीमतों में 50 रुपये से 100 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से GST में जो 1% इजाफा किया गया है उसका इम्पैक्ट अब आने लगा है और जो बुनियादी ज़िंदगी की अशिया हैं जिसमें बिस्किट्स हो गए, साबुन हो गए और दीगर अशिया हैं, इनकी कीमतों में तकरीबन 33% तक ना सिर्फ इजाफा हो गया बल्कि इनकी जो कंपनीज़ हैं इन्होंने अब जो है वो सप्लाई भी रोक दी है। और सप्लाई रोक के जो है वो बताया जा रहा है कि कॉस्टिंग की वजह से जो है वो सप्लाई रोकी गई है, क्योंकि GST जो 1% बढ़ाया गया है उसका जो है वो तयन कर रही कंपनी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आटे की, तो जो मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। बिलखुसूस जो आटा बनाने वाली कंपनी है उन्होंने 10 किलो का थैला जो है तकरीबन 100 रुपये तक महंगा किया है और तकरीबन 5 किलो का जो थैला है उसकी कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 किलो का जो थैला है वो 100 रुपये इजाफे से 1295 पे पहुँच गया। यानी कि ये जो कंपनीज़ हैं 1295 का 10 किलो का थैला जो है वो रिटेलर्स को देंगी और रिटेलर्स अपना मुनाफा रख के इसको फ़रोख्त करेंगे। तो यकीनन जो कीमतें हैं 10 किलो थैले की वो 1300 रुपये से भी तजावुज़ कर जाएंगी। और इसी तरीके से बात करूँ 5 किलो के थैले की, तो 5 किलो का थैला जो है वो 50 रुपये महंगा होकर 647 का जो है हो गया है। यानी कि जो कंपनी जो है वो 647 का रिटेलर कर देंगी और फिर जो रिटेलर्स हैं अपना मुनाफा रख के 5 किलो का थैला जो है वो फ़रोख्त करेंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि जो हुकूमत की जानिब से जो सरकारी कीमतें जो उनका तयन किया गया, जो मुकर्रर की गई हैं आटे की, वो फ़ी किलो 98 रुपये हैं। लेकिन इसके बरक्स जो मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि जो फ्लोर मिल्स की कंपनीज़ हैं उन्होंने आटे की कीमतों में इजाफा किया है और इस वजह से ये तमाम तरह जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। और उसके साथ साथ जो रिटेलर्स हैं और ताजिर, उनका ये कहना है कि जो आटे की कीमतों में इजाफे की बुनियादी तौर पर वजूहत ये हैं कि हुकूमत और इसके साथ साथ जो फ्लोर मिल्स हैं उनके दरमियान जो है वो आटे की कीमतों के हवाले से तयन नहीं हो सका है, कोई कीमतें फ़िक्स नहीं हो पाई हैं। तो उसके इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं उन्होंने आटे की कीमतों में इजाफा किया और इस वजह से ना सिर्फ आटा बल्कि दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है वो शहरी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। जी, शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार है, जबकि भिंडी की कीमत में इस्तेहकाम देखा गया है। शहर में भिंडी 280 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। लौकी और गोभी 30 रुपये कमी से 120 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है, जबकि तोरई 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। करेले की सरकारी कीमत 253 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन दुकानों पर 300 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। शहर में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बात करेंगे कराची में डेयरी फार्मर्स बेलगाम हो गए हैं। दूध के सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए हैं। दूध 180 की बजाय 210 रुपये किलो में मिलने लगा है। दही 320 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया है। शहरियों ने हुकूमत से सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं दूध के सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। एक रात में दूध की कीमतों में भी 20 रुपये तक इजाफा हो गया। टेलर्स हैं वो मनमानी कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं और इस वक्त 200 से ज़ायद रुपये फ़ी किलो पर दूध जो है फ़रोख्त किया जा रहा है और दही जो है वो 300 रुपये से ज़ायद पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर शहरी परेशान हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे पूछते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं आप इस हवाले से। ये सर दूध की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है और गरीब आदमी की पहुंच से दूर है और 210 रुपये किलो मिल रहा है। 210 रुपये जो है ना हम लोग नहीं ले सकते।
मगर मजबूरन लेना पड़ रहा है और सैलरी इतनी है नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं। उसके लिए कोई हम सिंध हुकूमत से कहना चाहेंगे कि हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो मेहरबानी। तो ये मुझे बताइएगा कि कोई रोकने वाला नहीं है, आप क्या समझते? 300 रुपये दही हो चुका है, 210 रुपये किलो, जेब पर भारी पड़ता है? सर बहुत भारी पड़ता है और ये 310 दही 320 रुपये किलो हो गई है। 300 नहीं है, 320 रुपये किलो है, अभी मैंने लिया है और 320 रुपये किलो दही है। और ये सर नामुमकिन, हमारे लिए तो नामुमकिन हो गया है लेना, मगर मजबूरन लेना पड़ रहा है। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जो ख़रीद फ़रोख्त है, जो हमारी क़ुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 320 रुपये जो है दही पहुंच चुका है, 210 रुपये दूध किलो फ़रोख्त हो रहा है। जो गरीब आदमी है वो खाएगा क्या, जो है वो। जवाद आसिफ हमें अपडेट करे थे और इस बारे में मजीद बात करते हैं। सादा डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन शाकर उमर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, दूध के सरकारी निरख 180 रुपये मुकर्रर हैं जबकि दुकानों पर 210 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बता दूं कि दूध की कीमतों पे हमारा इख्तियार नहीं है, ये वफाकी गवर्नमेंट का समझ लें दायरा इख्तियार है। और जब अजनास की जो कीमतें आपके लिए बढ़ रही हैं वो हमारे लिए भी बढ़ रही हैं। जैसी इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो आउटपुट कास्ट तो यकीनी तौर पे बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, दूध की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस वक्त 250 रुपये लीटर से ऊपर चली गई है और मुस्तकबिल में 300 रुपये लीटर तक दूध की कीमतें हो जाएंगी। तो ये हुकूमत वक्त अगर चाहे, वफाकी गवर्नमेंट अगर चाहे तो दूध की कीमतों में कमी के लिए इकदाम कर सकती है। जी अच्छा, लेकिन सर क्या इकदाम ऐसे किए जाने चाहिए कि ज़्यादा दूध जो है मज़ीद महंगा नहीं होना चाहिए? असल में जी देखें, हम अरसा दराज से पॉलिसी मेकर्स को और दीगर तमाम इदारों को ही हम लिखते आ रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने मवेशी को जेनेटिकली इम्प्रूव करना होगा, उनकी दूध देने की सलाहियत को बढ़ाना होगा। दूसरा, जो ये वतन अजीज में मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा और अजनास पैदा होता है और हमारी पॉलिसी ऐसी है कि वो हमारे मवेशियों की ज़रूरियात पूरी किए बगैर वो मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट आता है आउटपुट पे और वो सारिफ को भरना पड़ता है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अगर वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कोशिश करे, अजनास की एक्सपोर्ट पे, जो अजनास के बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं आपके, भूसा आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, चोकर आपकी एक्सपोर्ट हो रही, तो इस तमाम एक्सपोर्ट को जब हम रोक देंगे तो यकीनी तौर पे दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमतें रुकेंगी। और पिछले दिनों हमारे जो फूड मिनिस्टर थे वफाकी तारिक बशीर चीमा साहब ने 14 बहरी जहाज बहरा अरब के पानियों में रोक लिए गए थे GMO नॉन GMO की बहस में, जिसमें से 11 जहाज तो दीगर ममालिक की तरफ रुख कर गए और जो 3-4 जहाज उतरे वो 3 से 4 महीने के बाद रिलीज किए गए, जिसके असरात आपने अभी हाल ही में पोल्ट्री और डेयरी पे दिखे कीमतों के सिलसिले में। पोल्ट्री भी 1000 रुपए से ऊपर आपकी चली जाएगी और दूध की कीमतें भी 300 रुपए लीटर हो जाएंगी अगर वफाकी गवर्नमेंट ने कोई इकदाम ना किए तो। अच्छा सर, क्या गिरा फरोशी करने वाले दूध फरोशों के खिलाफ एक्शन का डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद है? नहीं जी, जब देखें यकीनी तौर पर दूध की कीमतों का ऐलान हमारे यहाँ की एक झेली तंजीम ने किया, मकामी जो भैंस कलर, और उसे हमने सपोर्ट किया है। और अगर इन्हें कार्रवाइयाँ करने का शौक है जरूर करें, हम उन्हें मना नहीं करते हैं और ना हम अपने तौर पे कोई कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कीमतों में इजाफा ही डेयरी फार्मर्स की जानिब से आया है। और 5 दिन बाद जो डिले हुआ, 11 से हमने इजाफा किया था, 5 दिन बाद जो वो प्रॉफिट के जो कीमतें बढ़ाई हैं, जैसे 3 रुपए लीटर उसे दिए गए हैं दुकानदार को और 50 पैसा उसे दिया गया है होलसेलर को, बाकी डेयरी फार्मर्स के 17 रुपए लीटर बढ़े हैं। तो ये इस तरह तरीका कार से ये चीजें हुई हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके हुई है और यकीनी तौर पे इस पर कार्रवाई बनती है। अगर कमिश्नर कराची करना चाहते हैं तो जरूर करें जी, हम उसे फेस करेंगे।
अच्छा सर, जैसा कि हमने मिनी बजट आने के बाद जो तासुरात देख रहे हैं तो उसमें तो महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस वक्त दूध जो है 210 रुपये जो है किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, कितनी कीमत इसकी बढ़ जाएगी? देखिए जी, मैं आपको ये खुली बात कर रहा हूँ, दूध की कीमत 300 रुपए लीटर तक जाने का खदशा है। अगर वफाकी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की और चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक की ये जिम्मेदारी है कि वो सारिफ के लिए सस्ता दूध पैदा करने के लिए डेयरी फार्मर्स की सपोर्ट करे और ऐसे इकदाम करे जो कि डेयरी सेक्टर या पोल्ट्री सेक्टर की राह में जो चीजें रुकावट है उन अवामिल को दूर करे, जो चीजें हमारी राह में रुकावट है, ताकि सस्ता दूध पैदा हो, सस्ता दूध सारिफ को मिले। ठीक है सर, पिछले जितने भी हमने दहाइयों में देखे हैं दूध की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हुकूमत या सिंध हुकूमत की जानिब से डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ कोई मिल के कोई बातचीत की गई हो, उनके जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया गया हो, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया हो, ऐसा कुछ हुआ है पहले? असल में जी देखिए, महकमा लाइव स्टॉक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तो मुसलसल हमसे बातचीत करते हैं और सेक्टर की बेहतरी में मिलजुल के हम इक़दाम करते हैं और दीगर चीजें भी कर रहे हैं। पर जो ये प्राइस कैपिंग है, ये प्राइस ऑफ कंट्रोलर की उसमें आता है, जो कि कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं, पर कीमतों में कमी का इख्तियार इनके पास नहीं है। वो है वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के हाथ में। असल में हम कार्रवाई करते हैं गलत हदफ के ऊपर। जब आप कमिश्नर कराची से तवक्को करते हैं कि वो कीमतें कम कराएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कमिश्नर साहब या डीसी कीमतें कम करा दें, क्योंकि उसके पीछे जो अवामिल कार फरमा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, और जो भी हुकूमत है उसकी पॉलिसी उसके पीछे कार फरमा है कीमतें बढ़ने के। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा, फंड्स जारी किए जाते हैं, क्या डेयरी फार्मर्स के लिए भी कोई ऐसा फंड मुख्तस कभी किया गया है? अगर किया गया है तो फंड्स उन तक पहुंचता है? असल में जी देखें, हम तक तो आज तक किसी एनजीओ ने भी फंड नहीं दिया, गवर्नमेंट तो क्या देगी हमें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारहा कहने के बावजूद किसी बैंक ने, जो भी मकामी हमारे बैंक हैं, उन मालियाती इदारों ने भी आज तक डेयरी फार्मर्स को कोई कर्ज फराम नहीं दिया। वो पेनल्टी तो भर देते हैं स्टेट बैंक की, पर हमें कुछ नहीं देते। तो ये बड़ा अलमिया है और यकीनी तौर पे इस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो ही चीजें बेहतर होंगी। और मैं आपको एक और भी बात कहूँ, मैं ये कहूँ कि बर्रे सगीर पाको हिंद के लोग भैंस का मोटा दूध पीने के आदी हैं। मैं उन्हें ये कहूँगा, ये राय दूंगा कि वो गाय के दूध की तरफ आ जाएं। गाय का दूध बेशक पतला होता है, कम फैट का होता है, पर सेहतमंद दूध है और सस्ता दूध है। मैं उन्हें राय दूंगा कि गाय की दूध की फार्मिंग को अब हमें तरगीब देनी चाहिए, हमें गाय का दूध पीना चाहिए, ताकि सस्ता दूध फरोख्त हो और कम से कम 30 रुपए लीटर कम दूध मिल जाएगा गाय का आप लोगों को, अगर हम इसे करना चाहेंगे प्रोफेशनल हो के तमाम लोग, और डेयरी फार्मिंग काऊ की शुरू होगी तो। जी सर, एक शॉर्टली आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी जाते जाते, वफाकी हुकूमत अगर कोई कार्रवाई करती है, दूध की कीमत मुकर्रर कर देती है, तो उस पर आपका अगला राय अमल क्या होगा, रद्द अमल क्या होगा इस पर? जी मैं ये कहूँगा, देखें विफाकी गवर्नमेंट का तो डोमेन नहीं है ना प्राइस कैपिंग, वो है सिंध गवर्नमेंट का और कमिश्नर कराची का। तो अगर वो कार्रवाई करती है तो उसे हम फेस करेंगे। और दूसरा मैं एक और भी बात बता दूं, देखिए हम बेतहाशा मवेशियों की स्लॉटरिंग कर रहे हैं, मादा जानवरों की स्लॉटरिंग और उनके डे ओल्ड कटड़े बछड़ों की स्लॉटरिंग भी दूध की कीमतें बढ़ाने में, गोश्त की कीमतें बढ़ाने में वजह है। तो हमें इसे भी देखना होगा और इसे भी बेहतर करना होगा। मवेशियों की स्लॉटरिंग रोक के उन्हें जेनेटिकली मकामी मवेशी को इम्प्रूव करना होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया भर की जो कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी मुंतकिल करती हैं किसी भी मुल्क में, उन्हें आसान रास्ता नहीं दिया जा रहा। वफाकी मिनिस्ट्रीज की तरफ से कानून साजी ऐसी की गई है कि तमाम सरमाया बह के, एक लिक्विड है ना जी सरमाया,
वो बह के कोई बांग्लादेश चला गया है, कुछ इंडिया चला गया है। क्योंकि देखें, जो ABS जेनेटिक्स या ST जो भी जेनेटिक्स की कंपनीज है, उन्होंने इंडिया में सरमायाकारी तो की है, उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं की। क्योंकि हमारे कवानीन ऐसे हैं, कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है यहाँ। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च से रिक्वेस्ट की है कि जी सारिफ को सस्ता दूध फराहम करने के लिए हमें अपने मवेशी को जेनेटिकली इम्प्रूव करना होगा। दुनिया ये काम कर चुकी है और हम 2-3 साल में ये कर लेंगे तो ये हम सस्ता दूध, सस्ता गोश्त सारिफ को दे सकेंगे। आप बराए मेहरबानी मुदाखलत करें और पॉलिसी ऐसी बनाएं, ऐसे बिल्कुल कवानीन पॉलिसी में ऐसी बनानी चाहिए जो कि डेयरी फार्मर्स को भी उससे फ़ायदा हो, तो ही कीमतें कंट्रोल करने में साजगार साबित होगा। बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुजर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और मौक़िफ़ दिया। महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। दूध, पेट्रोल, गैस, आटा सब कुछ महंगा होने पर आवाम की कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। दूध, पेट्रोल, गैस, आटा सब कुछ महंगा होने पर आवाम की कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। इस बारे में शहरी क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, रिक्शा चलाने वाले हैं, कारोबार है नहीं, 270 रुपये लीटर पेट्रोल इन लोगों ने कर दिया है। हम तो इधर मकान किराए पे नहीं ले सकते। रिक्शा चला रहा था, उसमें भी पेट्रोल महंगा होने की वजह से काम नहीं चाहिए। मेरी बीमारियां भी ऐसी हैं कि मैं गाड़ी कोई भी नहीं चला सकता। 350 रुपये लीटर पेट्रोल है, क्या बचाओगे? सवारी कहाँ से देगी आपको पैसा? वहाँ बेचारी पिस रही है, मज़ीद पिसती रहेगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोगों को सबको पता कि अभी भी मैंने दूध ख़रीदा है, 210 रुपये किलो यहाँ से दूध मुझे मिला है।